Good morning, students. Continuing with the same chapter, that is chapter number 6, Rules of Debit and Credit. Our today's topic is balancing an account. Balancing an account means how to balance an account. A balance of an account is the difference between the total of its debit and credit sides. Because an account has two sides, that one is debit side on the left hand side and credit means right hand side of an account. And when total of debit side is more than total of credit side, then it is called डेबिट बैलेंस. मीन्स अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो कम है, तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, डेबिट बैलेंस. मीन्स जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा. एंड इफ़ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज़ मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड, देन इट विल बी ए क्रेडिट बैलेंस. मीन्स अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो क्रेडिट बैलेंस आएगा. एंड हाउ टू balance and account, what is the process? That is first number step, that is total the two sides. You have to total both the sides of an account, that is total of debit side and total of credit side, and calculate the difference. Now you will calculate the difference on which side, which side is shorter, either debit side or credit side, and the difference, that is बैलेंस. मीन्स अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमने दोनों साइड्स, अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का हमने टोटल कर लिया और हमारी अगर डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हमारा जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पर आएगा. अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर आएगा. अगर हम बैलेंस डिफरेंस निकालेंगे, जिसे हम बैलेंस कहेंगे, वो हम एंटर करेंगे जिस साइड पर भी हमारा कम बैलेंस होगा, कम टोटल होगा, तो उसके बाद हमारा जो अकाउंट का टोटल है वो मैच कर जाएगा. And the last step is enter the difference that we have calculated in the second step. Enter the difference in the side with shorter total. Means जो साइड शॉर्ट होगी हम उस साइड पर बैलेंस जो है वो एंटर कर देंगे. And now the total of two sides will match. Okay. And if credit side is shorter, then the amount is entered on the credit side by writing by balance carry down. मीन्स अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी तो हमारा जो बैलेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो क्रेडिट साइड पर हम एंटर करेंगे और क्या लिखेंगे, दैट इज़ डिफरेंस को हम पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, दैट इज़ बाय बैलेंस कैरी डाउन. एंड इट इज़ कैरिड फॉरवर्ड बाय राइटिंग इन द डेबिट साइड. मगर अगर हमारा क्रेडिट साइड पर बैलेंस जो है वो हमने एंटर कर दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखकर, तो हम इसे नेक्स्ट जो कैरिड फॉरवर्ड करेंगे वो अपोजिट साइड पर करेंगे. अगर क्रेडिट साइड पर बैलेंस आया तो वो कैरिड फॉरवर्ड जो होगा वो डेबिट साइड पर होगा और लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीइंग अ डेबिट बैलेंस. ठीक है. And if debit side is shorter, then the amount is entered on the debit side by writing to balance carry down. अगर डेबिट साइड कम है तो हमारा जो अमाउंट, जो हमारी डिफरेंस की है, वो डेबिट साइड पर हम एंटर करेंगे. क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स कॉलम में, टू बैलेंस कैरी डाउन. एंड इट इज़ कैरिड फॉरवर्ड. एंड ये कैरिड फॉरवर्ड कहाँ होगा, ऑन द क्रेडिट साइड बाय राइटिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बीइंग अ क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस क्या डिनोट करता है, क्रेडिट बैलेंस क्या डिनोट करता है, दैट इज क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड. एंड डेबिट बैलेंस क्या डिनोट करता है, दैट इज डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड. ओके, विच आई हैव explained earlier. So after it we will know the account balances. Account balances means what is the balance of an account. According to modern classification of accounts, we have 5 types of account. That first is asset account, liabilities account, expenses account, revenue account and capital account. And under the traditional classification accounts, we have personal account. Personal accounts are related with person, that is capital account and drawings account are included in the personal account, and all the debtors and creditors account are included in the personal account. And real account is
related with all types of tangible and intangible assets. And last जो हमारा है that is nominal account, which is related to all the expenses and losses and all the revenues and incomes. So those all are also covered in this accounts, that is assets, liability, expenses, revenue and capital. First of all, asset account is related with all types of assets, whether cash, bank, debtors and so on. And asset account always have ए डेबिट बैलेंस, मीन्स एसेट जो हमारे होंगे, कोई भी एसेट हो, लैंड हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, डेटर्स हो, कोई भी हमारा एसेट होगा तो उसका बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होगा। मीन्स एसेट्स का बैलेंस जो है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। एंड जो हमारी लाइबिलिटीज़ है उनका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी कोई भी होगी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, कैपिटल एक्सेट्रा, कोई भी लाइबिलिटी होगी तो उसका बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। एंड उसके बाद जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस कोई भी हमने डे टू डे रूटीन में किया, रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, सैलरीज पे कर दी, वेजेस दे दिया, कमीशन पे कर दिया, इंटरेस्ट डिविडेंड दे दिया, ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी एक्सपेंस हमने पे किया तो उसका बैलेंस जो होगा, ऑल द टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस शुड हैव अ डेबिट बैलेंस। एंड रेवेन्यू का इसके उल्ट क्रेडिट बैलेंस होगा, मींस कोई भी रेवेन्यू जो हमें इनकम हुई है उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। एंड जो हमारी कैपिटल है उसका भी लाइबिलिटी, क्योंकि कैपिटल जो है वो भी एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी की तरह उसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मीन्स एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस और रेवेन्यू are closed by transferring their balances to trading account and profit and loss account. Trading account and profit and loss account, which are called financial statements. तो क्या है कि हमारे जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं, मीन्स जो हमारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू अकाउंट्स के साथ रिलेटेड है, उनको हम जब क्लोज करेंगे साल के एंड में, तो उनका जो बैलेंस है वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में से एक अकाउंट में। एंड बाकी जो हमारे अकाउंट्स बच गए, दैट इज़ ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट, रियल अकाउंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अकाउंट जो भी होते हैं उनको हम कैसे क्लोज करेंगे, आर ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। मींस जो भी हमारे रियल अकाउंट्स है, एसेट्स है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स है, हमारी कोई भी लाइबिलिटी है, कैपिटल है, उसको हम ट्रांसफ़र, उनका बैलेंस जो है वो किस फाइनेंशियल जो हमारी स्टेटमेंट होती है, दैट इज़ उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड बैलेंस शीट में जो भी आइटम गई, मींस हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ शो हुए जो भी बैलेंस शीट में, वो हमारे नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस होगा। मींस उसे हम नेक्स्ट ईयर कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। ये नहीं है नॉमिनल अकाउंट जो है वो तो क्लोज कर दिए, क्योंकि हमारे जो एक साल के खर्चे हैं हम उसे आगे नहीं ले जा सकते, वो हमने इस साल कर दिए, और हमारा जो अकाउंट है उसका बैलेंस हमने ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस में डालकर उसको क्लोज कर दिया, सारे नॉमिनल अकाउंट्स। एंड बाकी जो बचे हमारे पर्सनल अकाउंट, दैट इज़ डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट एंड रियल अकाउंट, एसेट के साथ जो रिलेटेड होते हैं, वो सारे अकाउंट, उनका बैलेंस जो है वो हम बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। और बैलेंस शीट में हमारी जो है उसमें जितने भी बैलेंस होंगे वो हम नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग, मींस वो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होंगे, हम उसे कैरिड फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। ये हम एक साल में क्लोज कर देते हैं, इनको हम आगे नहीं ले जाते, कैरिड फॉरवर्ड नहीं करते। एंड बैलेंस शीट में जो भी आइटम होती है हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ ही होते हैं, उनको हम नेक्स्ट ईयर कैरिड फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। एंड नाउ significance, we will know what is the significance of debit and credit balance in accounts. मीन्स कोई भी अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस किसी अकाउंट ने शो किया या क्रेडिट बैलेंस शो किया, तो उसका मीनिंग, मीन्स उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या शो करता है। फर्स्ट इज इफ़ क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल, एज वी नो, कैपिटल इज़ ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस,
सो अगर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो होगा, मीन्स अगर डेबिट साइड क्रेडिट बैलेंस कैसे आएगा, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, अगर क्रेडिट साइड, इफ़ क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड देन वी विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस. सो if capital is also liability, so we can also say capital as a liability. Capital account shows credit balance, then it denotes that amount due to the owner of the business. means ये क्या शो करेगी, अगर कैपिटल अकाउंट ने क्रेडिट बैलेंस शो किया तो इसका मतलब है कि हमने जो अमाउंट, मीन्स जितना बैलेंस शो किया वो हमें ऑनर को अमाउंट जो है वो ड्यू है, हमें ऑनर को अमाउंट जो है वो देने वाली है, हम उन ऑनर को पे करेंगे प्रोपराइटर को. एंड सेकंड है दैट इज़ क्रेडिट बैलेंस इन बैंक लोन. बैंक लोन या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट या फिर सप्लायर्स अकाउंट, सप्लायर्स और क्रेडिटर आर द सेम थिंग, मीन्स सेम ही होते हैं सप्लायर्स और क्रेडिटर जो होते हैं. एंड बैंक लोन क्रेडिटर्स अकाउंट क्या है, ये दोनों हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी है. और अगर लाइबिलिटी अकाउंट में फिर से अगर क्रेडिट बैलेंस शो किया तो इसका मतलब अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, दैट इज़ वी हैव अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द बैंक और सप्लायर्स. मीन्स हमने अमाउंट जो है वो सप्लायर्स को या फिर क्रेडिटर्स को पे करने वाली अभी पेएबल है, हमने पे नहीं की है, ठीक है, हमारी लाइबिलिटी शो करता है. और डेबिट बैलेंस इन कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, दीज ऑल आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड इफ it shows debit balance means all the assets should have debit balance, and if it shows debit balance then it means अगर कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मीन्स हमारे हाथ में कैश है, मीन्स हमारे पास बिजनेस में कैश, सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैश है. बैंक में अगर डेबिट बैलेंस शो किया तो बैंक अकाउंट अगर हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है तो इसका मतलब हमारा बैंक में पैसा पड़ा है, कैश एट बैंक. एंड डेटर्स अकाउंट मीन्स अमाउंट रिसीवेबल, मीन्स हमने अगर डेटर्स अकाउंट ने डेबिट बैलेंस शो किया तो इसका मतलब अमाउंट रिसीवेबल है हमारी, अभी तक हमें जो भी हमने बिजनेस ने क्रेडिट पर सेल की है उसकी अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं हुई, वो रिसीवेबल है, ठीक है. और नेक्स्ट है क्रेडिट बैलेंस इन इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, मीन्स कोई भी इनकम अगर क्रेडिट बैलेंस शो करती है, मीन्स इनकम का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है. अगर वो क्रेडिट बैलेंस शो करती है मीन्स इसका मतलब अमाउंट ऑफ इनकम अर्नड बाय बिजनेस, इसका मतलब बिजनेस ने कोई भी इनकम जो है वो अर्न की है, ठीक है. एंड डेबिट बैलेंस इन डिस्काउंट अलाउड, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, मीन्स कोई भी अगर एक्सपेंस अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस शो करेगा मीन्स उसकी जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा होगी तो वो क्या शो करेगा, दैट इज़ एक्सपेंसेस आर पेड बाय बिजनेस, मीन्स बिजनेस ने अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो पे कर दिए हैं, ठीक है. सबसे पहले क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस शो करते हैं, रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल ऑल्सो लाइबिलिटी की तरह क्रेडिट बैलेंस शो करती है. एंड उसके बाद ये आपको सिग्निफिकेंस याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चंस में आ जाता है कि अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करती है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो आपको ये मीनिंग जो है वो लिखना पड़ेगा, दैट इज़ अमाउंट ड्यू टू द ऑनर ऑफ द बिजनेस, मीन्स हमने अमाउंट जो है वो ऑनर को पे करनी है, ठीक है. मीन्स ये आपको याद रखना होगा फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है. तो एक हम एग्जाम्पल करेंगे, मीन्स हम एक टी शेप अकाउंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फर्स्ट आई हैव टेकन illustration number 7 from the book, that is open a T-shape account for furniture and write the following transactions on the proper side. Now we need not to prepare proper account, that is we didn't have journal entries, so we will make a simple T shape account, that is one is debit side and second is credit side.
and furniture account is an asset for the business, so on furniture account asset rule जो है वो apply होगा, that is debit the increases, credit the decreases, and if furniture increases we will write on the debit side, and if it decreases we will write on the credit side. This is debit side, this is credit side, and here it is the amount of it is the column of amount. So first we will read that the information we have given in the question. First is furniture purchased. We have purchased the furniture, and it has business has purchased furniture, that is 50,000 cash. And second, furniture sold costing 10,000 means furniture सेल किया है. थर्ड इज़ फर्नीचर परचेज़ किया मीन्स हमने और फर्नीचर परचेज़ कर लिया. नेक्स्ट इज़ ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मीन्स सोल्ड 5,000. एंड नेक्स्ट इज़ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000. फर्नीचर अगर हम परचेज़ करेंगे तो क्या रूल अप्लाई होगा, मीन्स फर्नीचर इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा. अगर हमने फर्नीचर जो है वो परचेज़ किया, फर्नीचर परचेज़ 50,000 मीन्स हमारा जो फर्नीचर अकाउंट है फर्नीचर इंक्रीज़ होता है अगर हमने उसे परचेज़ किया तो फर्स्ट हम फर्स्ट जो हमारी है वो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, दैट इज़ वी हैव परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश एंड वी विल simply you have to make only T-shape account, that is no need to start by writing 2 on debit side and buy on credit side. Furniture purchased by rupees 50,000. And second transaction second is furniture sold costing 10,000. And if we have sold, if purchased on debit side then sale will be on credit side, means अगर हमने फर्नीचर जो है वो सेल कर दिया तो हमारा फर्नीचर जो है वो कम हो जाएगा, मीन्स डिक्रीज़ हो जाएगा, तो हम उसे क्रेडिट साइड पर लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज, मीन्स हमने और फर्नीचर परचेज कर लिया, सेम कैश फर्नीचर परचेज्ड दैट इज़ रुपीज़ 15,000. ठीक है. तो उसके बाद हमने ओल्ड फर्नीचर सेल किया, दैट इज़ रुपीज़ 5,000. अगर हमने सेल कर दिया तो वो आ जाएगा ऑन क्रेडिट साइड, मीन्स हमारा जो फर्नीचर है वो डिक्रीज़ होगा. फर्नीचर डिस्कार्डेड दैट इज़ रुपीज़ 5,000. उसके बाद लास्ट थी हमारी डेप्रिसिएशन, मीन्स हमारी फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगी, और हमने डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमें पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होती है. डेप्रिसिएशन इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, मीन्स ऑल जो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं वो कंटिन्यूस यूज़ करने के कारण उनकी जो वैल्यू है वो कम होती है, और अगर वैल्यू कम होती है इसका मतलब फर्नीचर जो है वो डिक्रीज़ होगा या फिर इंक्रीज़ होगा. अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो फर्नीचर जो है वो डिक्रीज़ ही होगा, मीन्स हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में डेप्रिसिएशन की जो ट्रांजैक्शन की थी कि अगर डेप्रिसिएशन हमारी किसी भी एसेट पर फिक्स्ड एसेट पर लगी तो हमारा जो उसकी एसेट की वैल्यू है वो कम होगी, तो हम उसे किस साइड पर लिखेंगे, दैट इज़ ऑन क्रेडिट साइड, मीन्स डिक्रीज़ होगा, दैट इज़ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन on furniture that is rupees 5,000. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने अकाउंट का जो है वो बैलेंस करेंगे, एज वी हैव discussed that how to balance an account. First we will do total of both side, that is our first step. On debit side we have 50,000 and 15,000, that is 65,000, and on credit side we have rupees 10,000, 5,000, 5,000. So here at 20,000 is the total of credit side. Now where the which side is shorter, that is
credit side is shorter than debit side, means debit side is more than credit side. Now as we have discussed, if total of debit side is more than total of credit side, then it will be a debit balance, means हमारा जो balance आएगा वो कौन सा balance होगा, that is balance है debit balance. As and I have already explained what is the significance of debit balance. If an asset shows debit balance, if debtors account, sorry, I have not written any asset that we can see it from it, that is our asset should have debit balance, and if assets show debit balance, it means we have favorable balance. So where is the shorter, which is the shorter side, that is credit side, and we will know the difference, that is difference is 65 minus 25, sorry, depreciation is of rupees 3000, so total is 10,000 plus 5,000, 3,000, means 65,000 minus 18,000, that is 47,000, and it is called balance because it is the difference between the debit side and credit side, and it will be a balance. So balance is known as difference, difference is known as balance, sorry, and we will write this difference, that because debit side is more than, then we will write balance on credit side, because credit side is shorter by rupees 47,000. Now the total of two sides will match, that is 65,000 and 65,000, and 1.1, an important point, that you have to write total in same line, means total you can't write here and here, total should be in same line, and you have to draw two lines after it, that it shows that our account balances. Okay, now we will we will do one more example. In next video. I think that's sufficient for today. Thank you. I hope you understand. Thank you.